तो अभी प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा, जो कि आप करोगे या कोई और, विच इज इट इज दैट हाउ डू वी यूज नॉर्मलाइजेशन फॉर बेटर डेटा एंट्री. इज इट क्लियर? Our focus is towards audit intelligence. So up to now, we were extracting the data. Is it clear? Now we will go down to data entry and not direct data entry into Tally, but data entry through SQL Server normalized data warehouse. Is it clear, beta? Yes or no? And the benefit of the same is going to be that we would prevent data entry mistakes. अब डेटा एंट्री मिस्टेक्स कैसे हो सकती हैं? से सैंपल्स ए, पेमेंट एंड रिसीट, सेल्स, परचेज एंट्रीज विदाउट bill wise allocations. So no on account allocations. ये क्लियर है बेटा? Then entries that enable negative stock, because that takes the valuation for a 6. Is it clear बेटा? Yes or no? है बेटा? लेकिन ये जो है, ये तुम्हारे अकाउंटिंग एलोकेशंस, इसका इसका ही हो जाता है, इसका ही हो जाता है, राइट? देन weighted average is there, go down is there, batch is there. Now the immediate one जो कि उसको जो करना पड़ता है, this thing is there. So what will happen is that in case then the input can be an invoice. Is it clear? Or an API. Correct? Or the input form that you would generate. So in this particular input form, what you will do is, so the sample is going to be, say that a person enters a sales invoice. The stock based on the sales comes negative for that date. That we can calculate in database. Is it clear? हम database में calculate कर लेंगे ना. Then we need to mark an alert that the given data entry could be wrong. Is it clear? भाई गलत हो सकती है ना, भाई गलत है क्योंकि अभी टैली में नहीं रहेगा ना. सो दिस द पर्सन knows before the data enters into tally. Is it clear? क्योंकि अभी जो सारी प्रॉब्लम है, देन जैसे कि एक और भी चीज है, दी कॉस्ट सेंटर्स शुड रोल अप टू दी लेजर टोटल्स. क्योंकि अभी तो ये है कि भाई विद द लेजर टोटल कॉस्ट सेंटर्स माइट नॉट रोल अप, राइट? तो हमारे केस में होना चाहिए. इज इट क्लियर?
तो इसको लेकर के तुम इसके क्लाउड में जो ये वाली कन्वर्सेशन है सेल्स फ्लो प्लानिंग, यहां पे जो है तुम इसको ले सकते हो। तो ये तुम्हारा एक सेकंड प्रोजेक्ट होगा। सो द प्रोजेक्ट इज गोइंग टू बी इज, right now you will generate data entry forms, okay, and then generate where there can be an error during data entry flag purposes. The other one which I feel is that ledger is being entered. Which group? ये मेरे को बहुत complicated लगता है. Which group does it go to? Is it clear, बेटा? So AI ने भी कह दिया है, क्लाउड ने भी कह दिया है कि ये ठीक है, क्योंकि जब ये बन जाएगा, अगर ये बन गया, देन आई कैन जनरेट अ सिंगल टेबल एंड इंसर्ट इनटू टैली ऑल्सो। वो तो हम डाल ही देंगे, जैसे उनका एक्सेल का रहता है वैसे हमारा चल रहा है। बिकॉज द वीकनेस दैट आई फाइंड with the tally invoice data input is that you can have negative stocks, right? Is it clear? वैसे बेटा most of the things ERA will be taking care of. तो बेटा हम लोग जो डेटा एंट्री वाला करेंगे ना, वो डायरेक्ट नहीं करेंगे, ओनली टू द डेटा वेयरहाउस। इज इट क्लियर? So the reason why our product did not was not a hit with the CAs is because they are looking for immediate and confirmed benefits. तो ये तुम्हारा नेक्स्ट प्रोजेक्ट होगा। तो इन द ऑर्डर ऑफ साइकिल इज, फर्स्ट यू कंसोलिडेट द कोड, सेकंड is that I'll explain you the project which is coming next. Third is you will have to look at the input forms. This is the one which is there. ये क्लियर है बेटा कि नहीं है? एंड इस फ्लो में बेटा, फॉर फ्लो जनरेशन यू विल यूज एन एक्सटेंसिवली, क्योंकि वो एक फ्लो होगा ना, वो तो ट्रिगर की कोड होगा। So you generate a Python script and then using NA10 you can do it. पर मुझसे ये कहना था कि NA10 can be replaced by Python and task scheduler also. तो मुझे exactly ये नहीं पता कि कैसे होता है, वो थोड़ा तुम्हें चेक करना पड़ेगा। Then another project beta is, which is going to be, is the other projects are going to be is you will extract the day book। ये actually तुम सीधा कर सकते हो, raw form, वो मैं अभी कर देता हूं। Then feed into the cloud, chat GPT, सर्वम एआई एंड वो कौन सा है, चाइनीज डीप सी, विदाउट द बिजनेस लॉजिक। यही है ना?
तुम्हारे पास डे बुक में सारा है, तुम्हारे पास इसके पास सारा है, राइट? देन सी द क्वालिटी ऑफ रिस्पॉन्सेस। इज इट क्लियर? क्लियर? एंड कंपेयर विथ आवर रिस्पॉन्सेस। ये एक्चुअली में प्रॉब्लम खत्म तो नहीं हो गई? मान लो कोई ये बोले कि सर मैं तो डे बुक एक्सपोर्ट कर लूंगा, राइट? एंड देन यूजिंग क्लॉड चैट जीपीटी मैं एनालिसिस भी कर लूंगा। ये भी तो एक प्रोजेक्ट है ना। तो समझ आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? अच्छा रुको यार, दोस्त, बच्चे देखो इसमें क्या करना है तुमको। तुमने टैली प्राइम लिया सपोज, मैं ये भी तो बंदा कह सकता है कि भाई मैं खुद ही कर लूँ ये। रुको, और चलो को रिन्यू भी करना है। ये है ना बेटा? अब मैंने ये डे बुक निकाली और मैंने तिथि निकाली 1 अप्रैल 2023 की, राइट? ये सपोज निकाली, करेक्ट? ये मैंने फिक्टिशियस डेटा दे दिया है। फिर मैंने एक्सपोर्ट किया इसको, ये मेरी डे बुक हो गई ना, करंट। एंड देन आई पिक अप यस इन्वेंट्री, मोड ऑफ पेमेंट, कॉन्फ़िगर पे गया मैं और मैंने कहा यस राम सीताराम। ऐसे किया तुमने, करेक्ट? ये सुनो भाई, ये तो मैं निकाल ही सकता हूँ ना। एंड आई से एक्सेप्ट एंड आई से एक्सपोर्ट। सो हियर इफ आई गो, देन आई गेट दिस डे बुक वाली आउटपुट। ये निकाला है ना तुम्हारी डे बुक। ठीक है, करता हूँ सर। तो अब ये हो गया। ये तुम्हारी 20, अब ये वाली तुम्हारी डे बुक की फाइल निकल आई ना, इट हैज एवरीथिंग। ये सुनो, इट हैज मास्टर्स ऑल्सो, इट हैज वाउचर्स ऑल्सो। उसमें बच्चे क्या क्या है देखो ना, एक मिनट रुको। तुम्हें समझ आ रहा है बच्चे? नहीं, ये डे बुक में फीड कर दूंगा ना। वो क्या कह रहे हैं बेटा, अभी रुको। व्हाट द सीएस आर डूइंग इज कि भाई हमने ये डे बुक निकाल ली। अभी तुम इधर चलो, इस पे चलो, मैं दूसरा वाला तुम्हें एक वो दे देता हूँ, एक ईमेल दे देता हूँ, हाँ। रुको,
अब वो ये कह रहे हैं कि आई एड द इंटायर टैली डेटा। इसको मैंने डाल दिया, वो ये कह रहे हैं कि हमने ये डाल दिया। ओके। फिर वो कह रहे हैं कि हमने ये डे बुक डाल दी। राइट। फिर वो कह सकते हैं जनरेट अ शेड्यूल 3 बैलेंस शीट फ्रॉम द सेम। ये भी तो हो सकता है ना? ये सुनो, दिस इज द डे बुक विच टैली हैज गिवन। सो व्हाट दे आर सेइंग है, व्हाट द सीएस आर सेइंग इज कि हमारा ये काम कर रहा है, प्रॉब्लम क्या है? क्लॉड को कहाँ पता है टैली का लॉजिक? यही तो क्वेश्चन है। अगर क्लॉड को टैली का लॉजिक पता है, फिर हमारा रोल क्या है? तुम समझ रहे बेटा कि नहीं समझ रहे? नहीं, ये तो वो डेबुक एक्सपोर्ट कर लेगा। ही मेक अ पाइथन स्क्रिप्ट एक्सपोर्ट डेबुक। क्या बात कह रहे हो रोहित? वो जो वहां पे दिखा रहे हैं, वहां पे जो उन्होंने दिखाया, उन्होंने दे मेड अ पाइथन यूटिलिटी। यू कैन मेक अ पाइथन यूटिलिटी, मेक अ पाइथन यूटिलिटी टू एक्सट्रैक्ट डेबुक फ्रॉम टैली, डेबुक रिपोर्ट फ्रॉम टैली। इट विल मेक अ पाइथन, स्टोर इट इन दिस पर्टिकुलर फोल्डर, एंड दैट पर्टिकुलर फोल्डर से तुम उठा करके एनालिसिस कर लो। द प्रॉब्लम इज दिस ना, बिकॉज दे आर सेइंग कि मैम जरूरत क्या है आपकी? आर यू गेटिंग इट? So the same can be done with Sarvam, the same can be done with DeepSeek, the same can be done with ChatGPT. You have a paid this thing, and then you can generate it. That's what they're showing it all across the world. So this is without any business logic. We haven't given our business logic to it, no? So based on this, you can also make a Python script which will give you the trial balance without our product. Are you getting from where I'm coming? Then the next question is कि whether Sarvam is useful or this thing. तो इसीलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा था ना that this product might have run its course. I'm not sure. Because पहले तो हम पे डिपेंडेंट थे ना, उनको ट्रायल बैलेंस वगैरह निकालनी है बाय इंटायर लेजर मास्टर हायरार्की। तो ये, तो तुम्हें एक एक करके वो पॉइंट लेना पड़ेगा। कैन यू जनरेट द कंप्लीट चार्ट ऑफ अकाउंट्स, कि पूरी शेड्यूल 6 की बात पर ये बना के देख लो कि भाई क्या क्या है इसका। That is what the CA is doing. He's exporting it as an XML, and then he's saying, I can generate the entire thing.
इसलिए मैं तुमसे बार बार कह रहा हूं ना कि there might be an issue with this, with what we have made. How long can we continue with it? So the other point, other could be, क्योंकि पर ये क्लॉड ये कह रहा है बार बार मत जाओ, कि that we completely shift to our SQL Server module. ये बार बार मना करा कि ERP मत बनाओ, क्योंकि उसमें बुरी तरीके से फंसोगे. Are you getting it? तो फाइल बना रहा है, तो क्लॉड कर रहा है ना आप ये. ये बना रहा है वो. Now the case is, how is ours different from them? If I give this, the cost center वाले वो cost center वाली P&L भी बना देगा. अब वो एडिटिंग का फाइल. Are you getting from where I'm coming? That is why that junior SQL developer and Power Python, Power BI developer is gone. ये आया ना बेटा तुम्हारा, तो ये उसने बैलेंस शीट बना दी. शेड्यूल 3 की बैलेंस शीट बना दी उसने. Let's see how are the numbers. Total assets at 76545 ना. Unreconciled differences ये 42.8. ठीक है, चलो बना देंगे. ये ट्रायल बैलेंस है. ओपनिंग बैलेंस ये तुम्हें समझ में आ रहा है बेटा कि नहीं आ रहा है? ये बना रहा है ना पूरा का पूरा. फिर ये P&L लेजर, एक ही दिन का उसे परचेज अकाउंट्स नेगेटिव. ऐसे वो कह रहे हैं कि हम किसी का भी बना लें, हमें क्या है. So what's the difference between this daybook and the schedule 3 balance sheet and what we have made? ये मुझे भी पूरा क्लियर नहीं हो पा रहा है. Are you getting it? Daybook has everything. Ledger, Daybook is the complete list of transactions now, including
नहीं बेटा, आप समझ नहीं रहे हो ना। ये जो शेड्यूल 3 है ना, ये गवर्नमेंट का शेड्यूल 3 थोड़ी दे रहा है, वो उस फॉर्मेट में थोड़ी दे रहा है टैली। शेड्यूल 3 बैलेंस शीट हैज टू बी इन दिस फॉर्म ना। एग्जैक्टली, नहीं तो अभी मैनुअली डालना पड़ता ना। अलग है ना पूरा का पूरा, राइट। हाँ, अब ये चेक करना है कि जैसे कि मैंने इसको लिया, ये मैंने बैलेंस शीट ले ली, ठीक है। तो ये कह रहा है कि करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग। अब ये नंबर कहाँ से आया? बैंक ओवरड्राफ्ट। ये मुझे भी पूरा क्लियर नहीं कि बैंक ओवरड्राफ्ट उसने कहाँ से लिया। एक सेकंड, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स इज 2014572। ये नंबर कहाँ से आया? Now the case is that how does trade payables come? अब इसका डॉक्यूमेंटेशन कैसे चलेगा, ये नहीं पता लग रहा ना इसमें। कैश एंड कैश इक्विवेलेंस इन कैश एंड हैंड्स, वाओ। करंट एसेट्स में होगा ना दोस्त। वही, क्लोजिंग स्टॉक तो दिया नहीं। कैश इन हैंड कितना है? 13,62,171। इसका नंबर कितना है? ये थोड़ा देखना पड़ेगा ये कैसे कर रहे हैं। फ्लिपिंग टूल, राइट।
से हो जाएगा। तुम्हें क्या लग रहा है? ओके, ये मैंने गलत किया ना इसमें से, क्योंकि मैंने उस दिन की निकाली ना, फर्स्ट एग्जाम, सॉरी, पीरियड फर्स्ट फोर्थ 2023 टू फर्स्ट फोर्थ 2023, उसी दिन का है ना। सॉरी बेटा। इसमें बेटा कितना है कैश इन हैंड? 123,031.66। हाँ, ये पूरा मैच कर रहा है सर। ट्रेड रिसीवेबल्स इज 47,56,364। बैंक अकाउंट्स, ये हो जाएगा ना इसका। ठीक है, तो क्या है कर रहे, गलत नहीं हो सकता वाला। ओके फाइन, ठीक है, क्योंकि उसने डे बुक से लिया ना। अच्छा, तो डे बुक में जितना था वही आया। ओके, और जबकि इसने था ट्रेड रिसीवेबल, जिसका ट्रांजैक्शन नहीं भी हुआ था उसको लिया। ओके ओके फाइन, केवल डे बुक से नहीं होगा। थोड़ा देखना पड़ेगा कैसे होगा। ठीक है बेटा, ये रोहित सेकंड प्रोजेक्ट होगा। क्लियर? अभी ये मुझे भी बेटा पूरा क्लियर नहीं है कैसे होगा। ये हुआ ना? तो
कि बैलेंस नहीं आएगा उसको डे बुक में। पर अगर पूरे टाइम का ले लें तो आना चाहिए, खत्म हो जाना चाहिए। Assuming I'm able to extract the entire day book for that time period. फिक्स्ड एसेट्स का पूछे जरा। ओके फाइन, फिक्स्ड एसेट्स था नहीं तो एक पूरी की पूरी डे बुक की बैलेंस शीट नहीं बन पाई। बेटा वो लोग क्या कर रहे हैं कि वो लोग टैली से एक्सएमएल पूरा का पूरा एक्सपोर्ट कर रहे हैं और फिर उससे कह रहे हैं कि तुम पूरा का पूरा बनाओ। तुम्हें शायद इसके हाँ, या तो ट्रायल बैलेंस बैलेंस शीट। हाँ, करेक्ट। तो तुम्हारा डे बुक की अगर पूरी वैल्यू निकल आई और तुमने अगर मास्टर्स का पूरा निकाल लिया, जो कि तुम्हारा ट्रायल बैलेंस है, स्टॉक और स्टॉक आइटम का, ये तीन चार एक्सएमएल निकालनी पड़ेगी। तो इनका जो है, और फिर उसको एपीआई के थ्रू चैट जीपीटी या क्लॉड से चेक करा लो। नहीं लेने वाले, क्योंकि उतना वो उतना उतना अप्लाई नहीं कर पाएंगे ना। नहीं, पर हमारा फिर ये भी क्वेश्चन है कि हमारे पावर बीआई का क्या रोल हुआ ना फिर आगे। उनका वहां पे वो लोग क्यों लेंगे? क्योंकि वो मल्टीपल कंपनीज हैं। वो लोग क्यों नहीं कर सकते? वो एक एनी 10 ट्रिगर कर लें, डे बुक एक्सपोर्ट कर लें, ट्रायल बैलेंस कर लें और फिर एपीआई के थ्रू। नहीं, बट एआई जो है यहाँ से पूरा डेवलप भी तो कर रहा है ना, ये भी तो एक अलग पॉइंट है ना।
ये परचेज अकाउंट्स का क्यों नहीं आ रहा है? क्यों नहीं आ रहा? 1 अप्रैल 2023। सिविल परचेज 1484। सही बना है ना इसकी। करेक्ट। कारपेंट्री परचेज 2788। ये 93 कैसा है, 134 क्यों है? ये एक अलग इश्यू होगा, हमें देखना पड़ेगा रोहित। हमारे केस में तो पूरा मैच करता है। ओके, ये हो सकता है। ये कहीं एक्सएमएल में एरर तो नहीं देता, एरर प्रोन तो नहीं है? देखना पड़ेगा दोस्त।